sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you gave us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of the religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which is sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings, as the different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would have been far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. मित्रों नमस्कार, मैं प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने कुछ शब्द कहे, ये हमारे अति प्रिय, अति निकट के भारत के हिंदू धर्म के सन्यासी, जिन्होंने हिंदू धर्म को विदेश में, पश्चिम में जाके हिंदू धर्म का परचम लहराया, स्वामी विवेकानंद जी का भाषण का अंश था, जो उन्होंने 11 सितंबर 1997 को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना वक्तव्य दिया था। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं, उनके बारे में बहुत जानते हैं। मैं तो बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ उन सन्यासी का कुछ लफ्ज़, कुछ शब्द जो आपको रोमांचित करता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। या मित्रों, स्पेसिफिकली सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले मित्रों को मैं आज कहना चाहता हूँ
किसी वजह से सेकुलरिज्म का जो मंत्र हमारे कुछ नेताओं ने हमें पढ़ाया, उसके वजह से हम लोगों ने अब हम हिंदू हैं ये कहने के लिए भी थोड़ा शर्म महसूस करते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरा क्या समझेगा। प्रिय मित्रों, मैं भी सोचता था कि हम हिंदू हैं तो हैं, गर्व क्यों करेंगे। फिर मैंने सोचा और आज के दिन जब मुझे याद आया कि स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आज उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना वक्तव्य दिया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बात करूं। कुछ बिंदु लेकर आया हुआ हूं मैं आपके सामने कि हम गर्व क्यों करें, गर्व करने से क्या होता है। प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि हिंदू धर्म के ऊपर कितना घात प्रतिघात हुआ है। इनके मंदिर तोड़े गए हैं, जबरन धर्मांतरण हुआ है और हो भी रहा है, और उसके ऊपर सेकुलरिज्म का एक चोला जो हम लोगों को पहना गया है, ये शायद हमें धीरे धीरे नपुंसक बनाते जा रहा है। जब स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कुछ बात तो है मेरे दोस्त, सोचने वाली बात है। और आपको कहना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहिए मैं हिंदू हूँ। मित्रों, जो बिंदुआं मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा बहुत न्यून बिंदु हैं। उसके ऊपर लाखों बिंदु मिलेंगे जिसको लेके आप गर्व महसूस कर सकते हैं। ये जो सनातन धर्म है, आप जानते हैं ये कितना पुराना है। मेरे हिसाब से जब से मनुष्य का बुद्धि हुआ, जब से मनुष्य इस जगत में आया, तब से सनातन धर्म है, और शुरू से ही सनातन धर्म है। और पृथ्वी में जितने भी लोग थे सब सनातन धर्म के थे। इसीलिए आप देखेंगे आज के समय में कहीं कहीं, चाहे कंबोडिया में कहिए, चाहे यूरोप में कहिए, आप भगवान शिव का शिवलिंग मिलता है, खोदते खोदते शिवलिंग मिलता है। मित्रों, ये तो अलग बात है। मैं अपने बिंदुओं पे आऊँगा। तो सनातन धर्म जो है ये एक जीने की कला है। जो मनुष्य का जीने का जो धर्म है, कला है, वही सनातन धर्म है। यही हिंदू धर्म है। हिंदू होने के लिए बस आपको हिंदू परिवार में जन्म हुए, आप चाहे भगवान को माने न माने, आप गीता पढ़े न पढ़े, आप वेद जाने न जाने, आप हिंदू होते हैं, आप सनातनी हो जाते हैं। कोई और दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को मानना भी चाहता है तो उससे कोई धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई हिंदू धर्म में जन्म भी नहीं हुआ है तो भी अपने आप को सनातनी कह सकता है, और कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम मान के वो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। मित्रों, ये हिंदू धर्म जो है ये एक ऋषि परंपरा से आया हुआ है, और जो हमारे ऋषि थे वो वैज्ञानिक थे। किसी तरह का वैज्ञानिक कह सकते हैं, उसको सोशल साइंटिस्ट कह सकते हैं, फिजिसिस्ट कहते हैं, केमिस्ट कह सकते हैं। अपने तप के बल पर
अपने सिद्धांत के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने पढ़ाई के बल पर वो कुछ सिद्धियां हासिल करते थे और उसी सिद्धियां को उन्होंने हम लोगों को बांटा है। और उनकी जो ज्ञान है ज़्यादातर संस्कृत में उन्होंने अपने लिगेसी को बांटते गए हैं, अपने शिष्यों को देते गए हैं और बहुत सारे ऐसे श्लोक जो हैं उसको कंपाइल किया गया है और ग्रंथ। और इस वेद में विज्ञान, कौशल, शरीर विज्ञान, संगीत तथा अर्थशास्त्र ऐसे बहुत सारे विज्ञान उसमें है। जो हमारे पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो सब ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवशतः इसको हमने माइथोलॉजी कहा है, जो कि काल्पनिक कहा गया है। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हमारा जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, उसको आप इतिहास कहिए, इसको मिथक मत कहिए। सबसे पहले मैं आऊँगा जो हमारे ज्ञान को जिस भाषा में लिखा गया है, ज़्यादातर संस्कृत है। संस्कृत जो है इसके सबसे अधिक 54 अक्षर हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग मिला के 108 हैं और आज के समय में ये 102.78 बिलियन वर्ड्स इसके डिक्शनरी में है। और नासा के हिसाब से, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो अमेरिका में है, उसके हिसाब से संस्कृत जो है इस सबसे अच्छा लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, सबसे सूटेबल लैंग्वेज है। और जो हमारे 6th और 7th जनरेशन जो कंप्यूटर्स बनने जा रहे हैं 2034 तक, वो संस्कृत पर आधारित होंगे। ये आप रिसर्च करके जान सकते हैं। मैं फिर आऊँगा इस बिंदु पर कि जो हमारा रामायण समय या महाभारत का समय जो था, वो कम से कम 5000-7000 साल पुराना ये वैज्ञानिक प्रमाण कर चुके हैं। तो 5000 या 7000 साल पहले कोई भी सभ्यता का ना चिन्ह था, ना कोई वैज्ञानिक उसकी प्रमाण है। तो सबसे, और आप समझ सकते हैं उस महाभारत रामायण का समय वैज्ञानिक हिसाब से कितने आगे थे। यही है हिंदू सभ्यता, यही है सनातन सभ्यता। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था 1859 में, 1859 में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताता है कि मनुष्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ। वो बताते हैं कि पहले जो जीव था वो पानी में पहला जीव आया। तो हमारा क्या है, मत्स्य, फिश, मत्स्य, कस्य, वराह, वामन, नृसिंह, परशुराम, राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, फिर कल्कि। तो ये क्या बताते हैं, मैं आपको दोनों का सिमिलरिटी बता रहा हूँ। जो मत्स्य, फिश है, वो पानी में जो पहला संसार में जीव आया वो पानी में आया। फिर टॉर्टोइस
जो आया एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है और जल में भी, स्थल में भी, दोनों जगह रह सकता है। फिर एम्फीबियन हुआ। बराह, जो डायनासोर के साथ उसके कंपैरिजन कर सकते हैं, डायनासोर एरा। फिर बराह थोड़ा थोड़ा उन्नत होके मनुष्य अवतार लिया, जो नरसिंह अवतार है, आधा मनुष्य थे, आधा सिंह के अवतार थे। फिर आया वामन अवतार, जो छोटा मनुष्य आया, वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट था, ज़्यादा छोटा था लेकिन इंटेलिजेंट था। फिर परशुराम अवतार, जो जंगल में रहते थे, मनुष्य का अवतार आ गया वो। फिर भगवान राम हुए, वो परफेक्ट जेंटलमैन हुए, सौम्य पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जो बहुत चतुर थे, स्टेट्समैन थे। और उसके बाद बुद्ध, जिसको हम अहिंसा का अवतार मानते हैं। और उसके बाद कल्कि अवतार आने वाला है, जो संहार करने वाला है, जो आज के मूवीज आते हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस रहता है एक मनुष्य। यही है, आप देख सकते हैं कितना सिमिलरिटी है हमारा डार्विन के साथ मतवाद और हमारा दशावतार। आगे चलिए, जो हमारा पृथ्वी गोल है, इसका जो खोज कहते हैं कि एरिस्टोटल ने किया आज से 384 BC, करीब 300 BC में। लेकिन अब देखिए, बराह, जो जिनके बराह के दांत पे जो पृथ्वी रहता है, वो भी गोल है। वो तो मेरे ख्याल से 300 BC या 3000 BC से भी पहले था। तो हिंदुओं को ये पता था कि पृथ्वी गोल है। और आगे आके आप 9 प्लैनेट्स और नवग्रह के बारे में बात करेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों का उन लोगों का खोज है, कुछ 200-400 सालों का खोज है। लेकिन जो हमारे मुनि ऋषि इसके बारे में जानते थे। हिंदू सदियों से नवग्रहों का पूजा करते आया हुआ है और उनका चाल चलन के बारे में उनको ज्ञान था, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर बेस है। और जो हमारे कैलकुलेशंस जो होते हैं कि जैसे आपका चंद्र ग्रहण हो या सूर्य पराग हुआ, कब है, कौन से समय में है, इसका सटीक समय हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में है, जो आज की डेट में नासा भी मानता है। गणित में भारत का देन 0 है, जो सर्वविदित है। और 0 की वजह से गणित किस तरह से एक नया मोड़ लिया, आप सबको पता है। 0 न होता तो शायद गणित का मूल्य भी नहीं रहता। एक और छोटा सा बात आपके सामने रखूंगा। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, युग सहस्र योजन पर भानु। इसका मतलब है, इससे कैलकुलेशन हुआ कि सहस्र युग मतलब 12,000 और 12,000 योजना मतलब 10,000, 10,000। जो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मेरा, यही कैलकुलेशन है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरता है उसकी कैलकुलेशन है, जो कि 1653 में एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हुगेंस ने कैलकुलेट करके बताया था। ये हमारे हनुमान चालीसा में। आप औषधि के बारे में आए, शरीर विज्ञान के बारे में आए, चरक संहिता के बारे में आपने सुना होगा। चरक को सर्जरी का पिता कहा जाता है। तो चरक संहिता से बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य लिए के आज का औषधि विज्ञान
आगे जा रही है। एक और बात, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। आज से करीब 1000 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी जो पृथ्वी का एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसमें विदेश से भी लोग आके पढ़ाई करते थे, आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वंस कर दिया था और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको जलने के लिए करीब 3 महीने लग गए थे। किसी भी सभ्यता में ऐसा एक यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय के बारे में मैंने नहीं सुना। और हिंदू दर्शन में पशुओं को और वृक्षलताओं को भी पूजा करने की हमारी पद्धति है, जो कि आज के बारे में उसको संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हिंदू फिलोसफी में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, गॉड इज वन, पीपुल कॉल इट बाय वेरियस नेम्स। अनलाइक सम पीपुल से माई रिलीजन इज बेटर देन दो, मेरा रिलीजन ही सबसे अच्छा है। लेकिन हिंदू सभ्यता ने कभी ऐसा नहीं कहा है। हिंदू सभ्यता ने कहा है सब एक है, ईश्वर एक है, उसको लोग तरह तरह की उसकी व्याख्या करते हैं। यही है हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा मतलब पृथ्वी हमारा कुटुंब है। आपको पता होगा जब पारसियों का, जब ज़ोरास्ट्रियंस का उनके अपने मूल जगह से उनको निकाल दिया गया था, वो कौन थे क्या थे आप थोड़ा उसके बारे में पढ़िए। जब उनको निकाल दिया गया था, भारत एक राष्ट्र था, ये हिंदू सभ्यता ही था जिसने इनको शरण दिया था। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला सबसे ऊपर यही हिंदू फिलोसफी है जिसने अपने राष्ट्र को माता कहा है, भारत माता कहा गया है। किसी भी देश में अमेरिका माता नहीं कहा गया है, पाकिस्तान माता नहीं कहा गया, ये भारत ही है जिसे भारत माता कहा जाता है। कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरा उद्देश्य है कि अब आप लोगों के अंदर भी ये भाव आए कि आप भी कह सकें गर्व से कि मैं हिंदू हूँ। इसमें किसी को मतभेद नहीं होनी चाहिए, किसी को मन में कष्ट नहीं होनी चाहिए। इससे सेकुलरिज्म का खतरे में पड़ने का कोई चांस नहीं है। बस आप खुद विरोध कीजिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और उस महापुरुष को याद करते हुए फिर से कहिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद, प्रणाम।